Hello and welcome to another video of Kalpavruksha learning. Today's episode is on the chapter number 7 from NCERT class 10th mathematics book, which is coordinate geometry. So we shall begin the chapter with understanding the basics and then uske baad moving forward. Okay, now while we begin, let's first understand what is coordinate geometry and why do we read that. Okay, first of all, let me just explain. We've heard it in our previous classes and in our previous chapters that there is a plane called a Cartesian plane. Now, what's a Cartesian plane? A Cartesian plane is where there is an x axis denoted by x and x dash, and there's a y axis called y and y dash, cutting each other at exactly 90 degree, right? The plane that it creates by the intersection of these two axes is called as a Cartesian plane, right? Now, after we have defined what is a Cartesian plane, now let's understand what are quadrants. So, quadrants is anything, a whole number divided into four parts creates four quadrants, right? Similarly, a number as a whole divided into four parts creates four quadrants. Same is the logic. So this is the first quadrant, this being the second quadrant, this being the third quadrant, and this being the fourth quadrant, right? These are the four coordinates. Now let's understand what happens and why are these quadrants important to know. Say suppose I give you an example that you are standing at this point. Say this point is always 0 comma 0 called as the origin, right? You're standing at the origin and you're asked to take 3 steps towards the east. 1 step, 2 step, 3 step. This is your 3 units. Right? Now this is your 3 units, which means that this is the distance between the origin and the x-axis, and these are positive numbers. So if I have to donate this point, this is plus 3. Now let's say if I ask you to walk on the y-axis, positive number 3. So 1, 2 and 3. This becomes your point 3, 3, which means that first quadrant में आपके जितने भी numbers होते हैं, they are always positive. If the numbers are 3, 3, it is all positive, right? If you walk towards the east, the first quadrant that you find will always have coordinates as positive, positive. Now first let's understand what's a coordinate. Any point determining a x-axis point and determining a y-axis point put together is called as a coordinate. Say for example 3, 3 is a coordinate wherein your x-axis is called as the abscissa and your y-axis is referred to as the ordinate. एब्सिसा और ऑर्डिनेट के इंटरसेक्शन पे जब आप कोई एक पॉइंट ड्रॉप करते हो जो कि x, y के फॉर्मेट में होता है, both the numbers are positive integers, उस केस में they are called as a coordinate. Right? So this is a coordinate, this is a abscissa, this is a ordinate. We've understood what a Cartesian plane looks like. Now let's move to the second quadrant and let's understand कि अगर मुझे 3 steps इधर जाना हो, then how will my coordinate look like? So 1, 2 and 3. This point will be -3. And similarly, this point, this side will be +3 only. मतलब ये क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, anything that you are moving towards the north is always positive. तो आपका ये वाला जो point है, this point becomes -3, 3. करेक्ट? मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कभी भी कोई कोऑर्डिनेट लाई करता है तो इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ -x, y. मतलब यहाँ पर जहां पर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के दोनों x और y नंबर्स आपके दोनों पॉजिटिव में थे, इस क्वाड्रेंट में मूव करते ही x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और y जो है वो पॉजिटिव रिटेन करेगा. Now let's move this number to the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में हम साउथ की तरफ जाते हैं तो 1, 2 and 3.
दिस नंबर बिकम्स -3 यहाँ पर. सो -3 कॉमा -3 इस क्वाड्रेंट में आकर के साउथ में बेसिकली आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है एंड आपका वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है. करेक्ट. सो एनी कोऑर्डिनेट पॉइंट मार्क्ड इन द third quadrant will always be in the form of -x comma -y. Now let's move on to the fourth coordinate. फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब हम 3 यूनिट्स ईस्ट की तरफ गए और 3 यूनिट्स साउथ की तरफ गए, तो 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द ईस्ट दिस पॉइंट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस पॉइंट बिकम्स नेगेटिव 3 comma -3. So this point becomes x comma -y. Right? ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी. आपके एक कोऑर्डिनेट की जर्नी क्या है? x, y. मूविंग ऑन टू द सेकंड कोऑर्डिनेट जिसका वो मिरर इमेज है. अगर आप उसका मिरर इमेज ले रहे हो तो इट इज बिकमिंग -x, -y. आपने एक मिरर इमेज और लिया बट नीचे की तरफ लिया तो -x, -y. एक मिरर इमेज और लिया तो -x becomes positive and this becomes the negative y. This remains the negative y. मतलब आपका एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जो चेंज आता है वो 1 by 1 ही आता है. either your x changes or your y changes, right? So this is how overall your Cartesian plane looks like, right? Now we will move towards the coordinate geometry portion of it. ये आपका डिफाइन करता है कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं. Now let's move to the geometry bit of it. मूविंग ऑन टू द ज्योमेट्री बिट ऑफ इट, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मैंने एक बोला कि एक कार्टेशियन प्लेन है जहां पर मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स की ही बात करूंगी. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड ऑल्सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट? सो इट इज 1 2 3 4 5 6. से 1 2 3 4 5 6. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें आपके किस किस तरीके के न्यूएंसेस हो सकते हैं. The first nuance that you will always try to see is a mid-section point. What is a mid-section point? ये लॉजिक हम बहुत बार समझते आए हैं. से सपोज आपको पता है कि एक टोटल डिस्टेंस कवर किया. सो से हम अज्यूम करते हैं कि एक कार है, ठीक है. एक कार एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट पे जाकर के ट्रैवल करती है एंड दूसरे पॉइंट पे जाकर के स्टॉप करती है. We know the coordinates of the first starting point and we know the coordinates of the end point. What we have to find out is basically the middle point जहां पर वो कार कहीं से पास किया होगा, मतलब exact in center. तो हमें पता है कि जब भी हम किसी exact center की बात कर रहे होते हैं तो we are talking about the mean, right? So वही formula यहाँ पर भी लगने वाला है. I'll just explain it to you in the coordinate form. So how will it happen is, suppose I'm talking about a point called 3, 2. Now say this point. Now another point that I am talking about is say 6, 6. Right? And say suppose there is another point somewhere here जहां पे ये 4.5 होगा. 4.5 पे से एक लाइन यहां पर जा रही है. Right? So मैंने बोला कि ये है मेरा Q पॉइंट जो है मेरा 6.6. दिस इज माई P पॉइंट विच इज 3, 2. मेरे को जो निकालना है दैट इज x, y एंड दैट इज r, विच आई एम कंसिडरिंग दैट इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दिस कार्टेशियन प्लेन, राइट? अब इस फॉर्मूला को बेसिकली हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. Now to calculate this midpoint formula, what you need to keep in mind, हम निकाल रहे हैं mean. Now to calculate the mean, let's understand logic same रहेगा. X will be equal to 6 plus 3 divided by 2 and y will be equal to 6 plus 2 divided by 2, which means तुम्हारे r के coordinates हो जाएंगे 9 divided by 2 मतलब 4.5, 6 plus 2 8 divided by 2 meaning 4. So basically logically भी तो अगर हम इसको देखें तो हमने 4.5 डिसाइड किया था, right? We decided at 4.5. We started from here. So x coordinate is 4.5 and this is 4. Exactly the midpoint. मतलब कि ये जो total distance है this is 8. इसका midpoint is coming at 4. Right? So this is called the mid-section formula for calculate. This is basically called the mid-section formula for your Cartesian plane. Right?
Moving on to the next part, which is called as the section formula, which is very similar to how this one midpoint formula looks like. But इसमें क्या होता है कि आपका point जो है वो exact center पे नहीं होगा, correct? It will move a little bit. उस केस में हम क्या करेंगे? So अगर मैंने ये एक plane develop किया, right? Now let's understand. यहाँ पर मैं बताती हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको कि this is a section formula. राइट, दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है? सेक्शन फॉर्मूला का मतलब समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 से 7. राइट, नाउ ये है 1 2 3 5 7. ओके, नाउ 2,2 पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. नाउ 4,4 पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. एंड से मैं 7 से 7 पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, करेक्ट. और इस लाइन को मैं ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन करती हूँ. ज्वाइन करने के बाद ये होता है एक पॉइंट और ये होता है एक पॉइंट, करेक्ट. अब मैंने क्या बोला, ये पॉइंट इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है. से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी. सी मुझे निकालना है, से x, y. ए को मैंने बोला इज 2.2 एंड बी को मैंने बोला इज 7,7. फॉर्मूला मेरा सेम ही लगेगा, लेकिन बस यहाँ पर जो लॉजिक चेंज होगी वो लॉजिक ये चेंज होगी कि मेरे इसको, जब हमने लास्ट क्लास में बेसिकली क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ा था, तो वी हैड अंडरस्टूड स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट्स, राइट. सो बेसिकली ये जो मेरा डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप, correct. Now this is called as, say suppose I represent this section as m and this section as n. Let's find out the distance values of m and n. कितना है इसका वैल्यू, m का वैल्यू कितना है? अगर ये okay, so this distance I don't know right now and this distance also I don't know right now. So when you don't know the distances, how will you calculate? Let's understand how. So यहाँ पर आपके जो ये triangle बन रहे हैं, ये ट्रायंगल बनते हैं आपके 90 डिग्री when you are dropping a perpendicular. Similar is the case here when you are trying to join these two lines. Say suppose I join these two lines, this becomes P and this becomes Q. So this becomes CQ. CQ drops a perpendicular on the line. Say let's name this. This becomes D and this becomes E. So BE, the line, आपका CQ is a perpendicular on the line BQ. Okay. Now यहाँ पर अगर मुझे इस सेक्शन का फॉर्मूला, इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना पड़े, लेट्स अंडरस्टैंड कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. दिस एंटायर लेंथ इज 7, राइट, 7 यूनिट्स. Where is your this thing dropping at? You don't know. You are right now at y. So basically this section अगर मैं कंसिडर करूं कि दैट दिस पॉइंट, यहां तक का जो आपका कोऑर्डिनेट है दैट इज y, तो ये होगा आपका 7 minus y, right? This portion will be 7 minus y. And how long is this portion? 1 unit, 2 unit and 3 unit. So this is 3. So if you have to calculate n, so by Pythagoras theorem what happens is that you will put n square is equals to 3 square plus 7 minus y square, which gives you 9 plus 49 plus y square minus 14y. N is equals to y square minus 14y minus 14y. Yes, y square minus 14y plus 51, right? इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ यू नो द 2 पॉइंट्स एंड इफ यू नो दिस डिस्टेंस. देन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कितना होगा आपका. AP होगा आपका 2 से लेकर के 4. दिस मींस दिस इज 2 यूनिट्स, राइट. एंड दिस डिस्टेंस दैट वन इज देयर. यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस कितना है? से सपोज दिस यूनिट दैट वी आर डिस्क्राइबिंग राइट नाउ इज कमिंग y, राइट. तो अगर ये यहां तक का पॉइंट मेरा पता हो मुझे, okay, this point is 2,2, which means that this distance is 2 already. This is 2 units. If this is 2 units, how much will this be? If this is this thing, then this will be x minus 2.
अगेन द सेम लॉजिक वी अप्लाइड, यहां पर भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मुझे m कैलकुलेट करना हो तो m का फॉर्मूला होगा बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 plus x minus 2 का square, which means m is equals to 4 plus x square plus 4 minus 4x. So m is equals to 4 plus 4 8, x square minus 4x plus 8. करेक्ट, ये आपको मिल गया m और n. राइट, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर स्लोप्स. राइट, अब मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है. सेक्शन फॉर्मूला में हम बेसिकली बोलते हैं कि जैसे हमें ये पता हो, now we've understood how will we calculate the m and n respectively, right? What is m and n? The respective slopes. Now I am going to tell you what the section formula says. The section formula says कि जब हमें एक पॉइंट ऐसा निकालना है जो हमें पता है कि is not the midpoint of the, basically वो intersection point नहीं है, तो उसका कैलकुलेशन जो होगा, मेरा x कोऑर्डिनेट is going to look like, my x coordinate will look like m into x1 plus n into x2 divided by m plus n. Y is equals to m into y1 plus n into y2 divided by m plus n. Yes. Okay, now one more thing. हमने जब अपना m और n कैलकुलेट किया, we saw that we will be able to get to the m and n respectively using a under square, right? So whenever we are using a square root or say suppose a under square, the answer that always we receive is always, it can either be positive, it can either be negative, right? So the answer is always plus minus 2, plus minus 4, plus minus 7 and so on, correct? Now here the same thing applies, क्योंकि हमें पता है कि m and n जो भी हम receive करेंगे will always be either positive or negative. Let's call it as plus minus, plus minus, plus minus and plus minus. So basically section formula says that आपका पॉइंट अगर किसी सेंटर पे ड्रॉप ना हो करके एक रैंडम पॉइंट पे ड्रॉप हो रहा है जो कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने के लिए यू विल नीड द स्लोप्स, right? And the slopes can be obtained from dropping perpendiculars, which can give you right angles, and using the Pythagoras theorem we can arrive at that. Okay, moving on to the another and the last formula bit of it, which is basically your distance formula. जो अभी हमने किया, distance formula exactly is the same. Now I will not draw another graph and I will rather use this as an example. अभी जो हमने कैलकुलेट किया, राइट, n की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी? सपोज इसको एक एग्जांपल की तरह लेते हैं. हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक सिटी है, ये एक मैप है, राइट, दिस इज अ मैप, एक फ्लैट स्क्वायर पे एक मैप है, यहाँ पर एक कोई सिटी है, से आई विल से दैट इट इज से दिस इज दिल्ली, राइट, से दिस इज दिल्ली. दिल्ली से लेकर के हमको जाना है, से दिस इज जयपुर, राइट. दिल्ली से जयपुर का मुझे पता लगाना है कि मेरा डिस्टेंस कितना है, राइट. तो अब मुझे इतना पता है कि दिल्ली से अगर मैं ईस्ट की तरफ जाती हूँ तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मैं रुक करके चाय पानी पी सकती हूँ या फिर कॉफी वॉफी पी सकती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं एक अगर वहां से लेफ्ट टर्न लूँ तो मैं जयपुर पहुंच जाऊंगी, राइट. दिस इज अ रूट फॉर मी. बट देयर इज ऑल्सो अ रूट जहां पर मेरे पास कोई स्टॉपेज नहीं होगी, लेकिन मैं इसका स्ट्रेट जा सकती हूँ, दिस विच इज अ शॉर्टकट विच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द Google Maps, right? Google Maps आपको वो कौन सी रोड दिखाता है, which is the most genuine road, जहां से आप आराम से जा सकते हो. ये शॉर्टकट ऐसा जहां से आप काट के निकल सकते हो, लेकिन आप वहां तक जब आप पहुंचोगे वो मैप में आपको नहीं दिखाई देगा, बट यू नो द रोड, राइट. नाउ अंडरस्टैंड, गूगल मैप्स आपको एक एस्टिमेट दे रहा है कि इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इतना है, करेक्ट. यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज 3, right? You know for a matter of fact, अगर हम consider करते हैं that this, if I consider by going by this logic, if this is 4, then this would have been 3, right? तो अगर ये 3 है और ये 3 है, मतलब my total distance was going to be 3 plus 3 6, करेक्ट. मेरा ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, लॉजिकली समझने की कोशिश करें तो ये जो है मेरा ये डिस्टेंस है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है.
बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्टेंस, मतलब सबसे कम डिस्टेंस में आप जहां पर पहुंच सकते हो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस विल बी. सेम लॉजिक होगा, n स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब होगा n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9, तो n इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर 18, राइट. तो n इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर 18 होगा, कंसिडरिंग दैट दिस एंड दिस आर इक्वल टू 3, राइट. सो दिस इज बेसिकली योर डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके आप क्रिएट करते हो अपना सेक्शन फॉर्मूला, राइट. और जो फर्स्ट जो लॉजिक हमने, जो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने समझा था, दैट लॉजिक वाज बेसिकली योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, जहां पे आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, आपको मालूम है कि x और y कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट पे फॉल कर रहा है, तो उसका हमको बस एक मीन निकालना है, right. So now this covers your entire formula base for the entire chapter that we would be using. अब बस हमें अपने यही सेम लॉजिक्स को फर्दर यूज करते चले जाना है और इसके सम्स को सॉल्व करना है. उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स. ओके, नाउ व्हेन आई से लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स में एक क्रिटिकल चीज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ. दैट पॉइंट इज बेसिकली collinear points. Now what are collinear points? collinear points में आपका क्या होगा, एक कार्टेशियन प्लेन में, एक कार्टेशियन प्लेन में सपोज देयर आर 3 पॉइंट्स, राइट. अगर से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C. नाउ दिस एंड दिस, अगर मैं बोलूं कि मुझे A और B का डिस्टेंस मालूम है और B और C का डिस्टेंस मालूम है, तो अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, राइट. अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होता है, देन पॉइंट्स A, B and C are collinear in nature. Collinear in nature का मतलब होता है falling on a straight line. Falling on a straight line such that वो mid section हो या फिर सिर्फ section formula हो, उनको add करने पे, उनके distances को add करने पे, it will basically give you the entire length of it. Right, that is a collinear points. Now हमने collinear discuss करा. Now let's understand कि हम और तरीके की चीजों को कैसे identify कर सकते हैं. अगर हम बोलते हैं कि there are 3 coordinates, right? Say suppose there are 3 coordinates as such. Say this is x comma y a. Say this is b x1 comma y1. Say this is c x2 comma y2. Now I say that अगर मेरा जो length of say AC is equals to AB है, right? AC is equals to AB है, but is not equals to BC है, which means इसके दो sides equal हैं, दो sides equal हैं, तीसरा side equal नहीं है, which means it is an isosceles triangle. लेंथ आप कैसे निकालोगे? लेंथ का फॉर्मूला अभी हमने समझ लिया, राइट. x2 minus x divided by 2 will be your sorry my bad, इसका डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ x2 minus x का स्क्वायर प्लस y2 minus y का स्क्वायर, और उसका जो अंडर रूट होगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो. सिमिलरली अगर आप बोलते हो कि AC is equals to AB is equals to BC, which means we are talking about an equilateral triangle. प्रोवाइडेड आप एक ट्रायंगल की बात कर रहे हो जहां पर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है दैट द कोऑर्डिनेट्स आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल एंड आल्सो इट इज सेइंग दैट दीज लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर. अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है देन उस केस के सिनेरियोज की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट. नाउ दिस इज अंडरस्टूड इक्विलेटरल ट्रायंगल. इफ by chance it says that all the three sides are not equal to each other, in that case it will be a scalene triangle, correct. Now let's moving on to जहां पे 4 कोऑर्डिनेट्स की बात आती है. 4 कोऑर्डिनेट्स की बात आती है तो आपके पास जो फिगर्स आएंगे वो एक आ सकता है आपके पास स्क्वायर और एक आ सकता है आपके पास रेक्टेंगल. व्हाट इज द थर्ड टाइप? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थर्ड टाइप में आपके पास क्या क्या आ सकता है. जब हम 4 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो 4 कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास स्पेसिफिकली आता है एक्स स्क्वायर. 4 कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास आता है एक रेक्टेंगल. 4 कोऑर्डिनेट्स में ही मेरे पास आता है एक ट्रेपीजियम.
और 4 कोऑर्डिनेट्स में ही मेरे पास आता है एक पैरेललोग्राम, right? Now this is A, this is B, this is C, and this is D. This is A, this is B, this is C, and this is D. A, B, C, and D. A, B, C एंड डी, राइट? अब इसमें सेम लॉजिक जो हम अभी ट्राइंगल्स के लिए समझने की कोशिश कर रहे थे, सेम लॉजिक अगर मुझे ये पता चल जाए दैट ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो फॉर्मूला सिंपल है कि ये एक स्क्वायर है, राइट? इसका और कोई मतलब लॉजिक हो नहीं सकता। बट इसको एक डिफरेंट एंगल से अगर हम सोचने की कोशिश करें तो स्क्वायर को हम एक डायमंड के फॉर्म में देख सकते हैं, करेक्ट? बट इस केस में भी क्योंकि उसके सारे साइड्स इक्वल रहेंगे तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा ऑफ द डायगोनल्स विल आल्सो बी द सेम, व्हिच विल फॉर्म बेसिकली अ काइट फॉर्म, तो आपका वो सेम रहेगा। बट दैट डजंट हैपन इन दिस केस ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर आप ये प्रूव कर लेते हो कि आपके ये दो साइड्स इक्वल है और ये दो साइड्स इक्वल है कोऑर्डिनेट से, बेसिकली यू आर एबल टू प्रूव दैट दिस इज ईदर अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम, राइट? या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो एक आपका पैरेललोग्राम होगा। नाउ हाउ डू यू डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएशन स्क्वायर में और रेक्टेंगल में जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स आपके हमेशा सेम लेंथ के होंगे, व्हिच मींस दैट ए बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए सी। सिमिलरली यहां पर भी होगा आपका, जब मैंने अगर डिफाइन किया है तो ए सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी सी। अगर ये आपकी चारों कंडीशंस मीट कर रही हैं दोनों केसेस में, ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, इट्स अ स्क्वायर। इफ टू opposite sides are coming as equal and the diagonals are also equal, it's a rectangle. But if in case the diagonals are not meeting the length, which means your AD is not equals to BC, but your AC is equal to BD and your AB is equals to CD. In this case, this is a typical example of a parallelogram. This is a typical example of a parallelogram. Moving on to the trapezium. Trapezium क्या है? Trapezium भी same है, बस यहाँ पर आपका केस क्या होगा, यहाँ पर भी आपका दो साइड्स इक्वल नहीं होंगे एंड दो साइड्स आपके कभी भी पैरेलल भी नहीं होंगे, राइट? बट ये इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, एग्जाम्पल आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स एंड इनटू अ रेक्टेंगल एंड देन चेक इट स्पेसिफिकली इन डिफरेंट क्वाड्स। सो आपका जब भी आपका ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम विल हैव टू बी ट्रीटेड अ लिटिल डिफरेंटली, बिकॉज जब हमने अपने ट्राइंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो लाइंस पैरेलली एक दूसरे को दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही होती हैं और दो लाइंस एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़, उसके जॉइनिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अगर उन्हें एक्सटेंड किया जाए तो दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। इट विल नॉट बी इजी टू प्रूव इट कि आप उसको किसी फॉर्मूला से प्रूव कर सको। यू विल ऑलवेज हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एंड देन डिफरेंशिएट इट एंड देन सी इट from a different angle. We will deep dive onto this in the next video maybe. We'll continue with the chapter right now and start taking a little bit of theorems more. So going forward, for all the chapters that you will find, you will always find that the chapters will be covered in maximum 2 videos, out of which one video will always be solved examples. If your chapter extends beyond 2 videos, then the third of your video will always have solved examples. I'll always share solved examples for you guys. That's my point. Now let's understand एक question. अभी हमने अपने ट्राइंगल्स की, स्क्वायर्स की, रेक्टेंगल्स की सबकी बात कर ली ना। लेट्स अंडरस्टैंड। Alright, so the question we are taking is basically, do the points 3, 2 minus 2, 3 and 2, 3 form a triangle? If so, name the type of triangle formed. Again, so अभी हमने वही चीज पढ़ा था, ठीक है? मैंने जब एक्सप्लेन करा, let's understand. हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है? ये हो गया 3, 2, ये हो गया -2, 3 एंड ये हो गया 2, 3। जो क्वेश्चन हमने पिक किया है वो क्वेश्चन है आपका एक ट्राइंगल और उसके 3 कोऑर्डिनेट्स, राइट? वी आर गोइंग टू फर्स्ट फिगर आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड्स।
तो हम पहले फिगर आउट करते हैं ए बी। ओके, एक थंब रूल समझने की कोशिश करते हैं। थंब रूल हमेशा ये होगा कि अगर आप लेंथ निकाल रहे हो ए और बी की, हमेशा आपका जो कोऑर्डिनेट का आप जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंसीडर करोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट का कंसीडर करोगे। सो इन केस इफ यू कंसीडर्ड ए एज 3,2 एंड बी एज -2,3 -2, -3 विच वाज द एरर, राइट। नाउ यहां पर आपका होगा राइट, यही था, सारी भसूड़ी। ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग दिस द क्वेश्चन बिकम्स -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है कि मुझे माइनस करना है बेसिकली। तो -2 -3 मिलके बनता है 25, 5 का स्क्वायर मिलके बनता है 25, -3 -2 बनता है -5 which becomes 25 again, which gives you the under root 50 as your AB. Right, now let's consider BC. Considering BC, now ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या होगा, बी सी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर होगा बी इससे माइनस किया था, -2 का स्क्वायर +3 +3 का स्क्वायर, करेक्ट। तो दिस विल बिकम -4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर बेसिकली 36, so 36 52 अंडर रूट 52। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड AC। AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, करते हैं 2, -3 का स्क्वायर +3, 2 का स्क्वायर which gives you 1 + 1 का स्क्वायर which gives you under root 2, right। now मेरे पास BC आ गया, मेरे पास AC आ गया, मेरे पास AB आ गया। नाउ इस एक को एक एंगल से अगर मुझे देखा जाए तो मैं इसको लेती हूँ कि BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। Now let's understand BC का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 52 का स्क्वायर बिकम्स 52 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना बनता है, बेसिकली इज इक्वल्स टू 50। AC का स्क्वायर बिकम्स 2, मतलब दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस इज स्टैंडिंग ट्रू। मतलब दो साइड्स के स्क्वायर को अगर हम सम कर रहे हैं तो इट इज कमिंग टू इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, which is basically a Pythagoras theorem, which means that BC is basically the hypotenuse while AB and AC में से एक perpendicular है और एक AC है, which means that this is a right angled triangle in any shape size and form। तो अगर बेसिकली हम इस कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉप करने की कोशिश करें, सो प्रोबेबली द ट्रायंगल दैट वी विल गेट will be a right angle triangle, correct। now right angle triangle तो ये है, बट इसके साइड्स में आप और कोई कॉमनैलिटी ढूंढ पा रहे हो? नहीं, द लेंथ्स आर ऑल ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, बेसिकली आपके साइड्स जितने भी हैं आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, मतलब दिस इज अ स्केलिंग ट्रायंगल बट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ पे एक मिस्टेक हमारी बस इतनी हुई थी कि वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पहले कि सब्ट्रैक्ट किससे किसको करना है। सो द डिस्टेंस का आप जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो, आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसको कैलकुलेट करना शुरू करोगे। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक गए हो तो -2, -3 विल बी योर लॉजिक, राइट। मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। हाँ, दिस क्वेश्चन विल बी राइट। अब हम यहाँ पर बस एक लॉजिक डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में वी ऑलवेज नोन दैट वेरिएबल होगा ही होगा, राइट। एंड उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मोस्टली जब हम इतने सारे पॉलिनोमियल्स और स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन एंड एवरीथिंग जब हम पढ़ चुके हैं, तो व्हाट वी फिगर्ड आउट इज कि दैट हर रिलेशन को डेवलप करने के लिए अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं व्हिच इन अ कार्टेशियन प्लेन इट विल ऑलवेज बी, तो मेरे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए और उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर मुझे ये पता है दैट टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन वन कार्टेशियन प्लेन,
देन बेसिकली उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए विच शुड एस्टैब्लिश कि उसके बीच का डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, दैट इक्वेशन शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट. हाउ कैन वी डू इट? Find a relation between x comma y such that the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5. See this? ऑलराइट, सो यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है. ओके, हम ग्राफ पे नहीं ड्रॉ करते, हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं. हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं. ठीक, दिस इज एक्स कॉमा वाई. One is your 7 comma 1 and 3 comma 5. Let's say this is 7 comma 1 and this is 3 comma 5. ओके, 3 comma 5 है एंड 7 comma 1 है. तो 3, अगर मैं इसको प्लेन पे कहीं पे ड्रॉ करूंगी ना, तो 3 comma 1 will be somewhere here and 7 comma 1 will be 7 comma 1. 3 comma 5, 3 comma 5 will be somewhere here and 7 comma 1 will be somewhere here. So basically ये एक ऐसी लाइन बनेगी आपकी ग्राफ के ऊपर, राइट? अभी मैंने क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इसको फ्लैट ड्रॉ किया है, तो विच इज दिस इज लुकिंग लाइक दिस. अगर हम इसको डिफाइन करें और मैं अगर इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं एंड आई कॉल दिस पॉइंट एज सी विच इज वी आर कंसिडरिंग एज अ मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना 7 comma 1, दिस इज बी एंड दिस इज ए. एंड जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे वो कुछ इसका बीच का फॉर्मूला होगा विच विल बी एक्स कॉमा वाई, राइट? ये है हमारा लॉजिक. पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं. आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर. हमें बोल रहे हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला डिफाइन करो कि जिससे ये पता चल जाए कि इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, सॉरी इनके बीच का जो कनेक्शन होगा, उसका जो इक्वेशन होगा, व्हाट विल बी दैट इक्वेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. हमने क्या बोला कि ये मिड पॉइंट है. मतलब मिड पॉइंट का मतलब हो गया आपका ए सी विल बी इक्वल्स टू सी बी, राइट? ए सी हम कैसे निकालेंगे? ए सी को हम निकालेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, राइट? ओके, इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं. उसी तरीके से हम निकालेंगे बेसिकली बी सी भी. हाँ, है ना? बी सी भी हम उसी तरीके से निकालेंगे. तो बी सी कैसे निकालेंगे? x माइनस 7 प्लस y माइनस 1, करेक्ट? अब ये दोनों हैं इक्वल एक दूसरे के, तो इक्वल हो गए, तो भाई ये हो गया AC will be equal to BC and AC square will be equal to BC square also. तो अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटा, तो दिस विल बिकम, वी विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग इट नाउ, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6, सॉरी प्लस 9 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y. दिस इज योर AC का स्क्वायर. BC, इसको एक्सपैंड करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस y, करेक्ट? अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर को नलिफाई, वाई स्क्वायर को नलिफाई. अब हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या क्या पॉइंटर्स हैं. 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 जोड़ करके बनता है 38. तो दिस बिकम्स 38 minus 2x minus 10y, which becomes 49 plus 150 minus 14x minus y. ठीक, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, अच्छा ठीक है, नहीं हटाना पड़ेगा, इट्स ऑलराइट, हम कर लेते हैं इसको. 14 को इस तरफ लेकर के आते हैं. 14 minus 2 basically becomes 12x and this becomes minus 10y. So अगर हम y को लेकर आते हैं तो minus 9y. And if I take 38 that side, so 50 minus 38 becomes 50 minus 40 becomes 10. 10 में से 2 और reduce करेंगे तो basically it becomes 50 में से 40 reduce करेंगे तो becomes 10 plus 2 12. Right? अब इसमें common factor है which is 3. Let's reduce it. So 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 4. So 4x minus 3y is equals to 4 is the relation between these two. Right?
There is a small mistake I feel. Let's understand what happened यहाँ पे. X minus 7 plus y minus 1. X minus 7 plus y minus 1, correct? X minus 3 का square plus y minus 5 का square, correct? So this becomes x square plus 9 minus 6x, correct? This becomes 6x plus y square plus 25 minus 10y is equals to x square plus 49 minus 14x plus y square plus 1 minus y. Absolutely right. Then it becomes x square or x square cancel hota hai, nullify. So my this thing will be यहाँ पर minus 6x है and 14x इधर आएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 becomes 8x. All right. This becomes 8x. Hmm. 38. 9 plus 25 becomes 38 minus 6x plus minus 10y is equals to 50 minus 14x minus y. So हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि 50 minus 38 हुआ तो कितना हुआ 12, right? 50 minus 38 हुआ तो 12 हुआ. Let that be. Okay. Minus 6x 14x इधर आता है तो 7 8 9 10 11 12 13 14 8x. All right, this becomes 8x. Or minus 10y plus y, it becomes minus 9y. Then how does it come? 8x minus 8y is equals to 16. How does it become 8y? Yes, it becomes 8y क्योंकि यहाँ पर होगा 2y. Absolutely. अब अगर ये 2y होता है तो ये हो जाएगा 2y, अगर इधर आता है तो ये हो जाएगा 8y, करेक्ट? And G 8y is equals to 16, 50 or 38? 34. How does it becoming 38 now? 25. 25 plus 10 is 35. 34. This is 34. So 50 minus 34 gives you a number which is equals to 16, correct? All right. लॉजिक इसको एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड करते वक्त एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 कैसे आएगा? एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पर. एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला x माइनस 3 का स्क्वायर बेसिकली गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे तो y माइनस 5 मतलब y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू 10 y. ठीक है, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 y. इक्वेशन कंप्लीट. सेकंड पार्ट की इक्वेशन. गलती कहां पर हुई थी? गलती आपकी यहां पर हुई थी मेरी, जहां पर y माइनस 1 को अगर आप एक्सपैंड करते हो तो इट बिकम्स y स्क्वायर प्लस 1 minus 2y, right? What mistake I did was that this became minus y, correct? I figured out that mistake. Equation solve होके आती है 8x minus 8y is equal to 16, which in turn gives you a number as x minus y is equals to 2. So basically the relation between the 2 points is if you have to define the this polynomial of the straight line, this is x minus y is equals to 2. Correct? We've understood what this is and we should be able to solve any further question which is of the similar type. अब हम एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, right? Which will be a real life example based. Alright, so the next question that we are taking up is basically find the coordinates of the point A, where AB is a diameter of a circle whose center is 2, minus 3 and the coordinate of the points are B, B are 1, 4. मतलब first of all तो एक सर्कल की बात हो रही है, राइट? जब भी एक सर्कल की बात हो रही है वहां पे एक सेंटर की बात हो रही होगी.
जहां पे भी सर्कल के अंदर एक कोऑर्डिनेट की बात हो रही है और 3 कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, वहां पर एक डायमीटर की बात हो रही होगी, राइट? एंड ये सेंटर होगा तो ये रेडियस होगा। रेडियस होगा आपका ए आर और एक रेडियस होगा आपका आर बी, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ए को बोला मैंने एक्स कॉमा वाई और बी को बोला मैंने 1,4। मुझे क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। अच्छा, ओके, ये कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है, सेइंग दैट जो सेंटर पॉइंट है वो 2,-3 है। ऑलराइट, और ओके, तो बेसिकली सेम क्वेश्चन है ना, मतलब मुझे बता दिया गया है कि आर जो है वो मेरा रेडियस है। रेडियस है तो ए सी ए आर, बेसिकली ए आर विल बी इक्वल टू आर बी, विच मीन्स दैट ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी का स्क्वायर। हम ये वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो वहां करी थी, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी विल डू। वी विल अगेन स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन। ओके, इसको 2 पॉइंट से किया जा सकता है। अगर ये दोनों सेम हैं देन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप इस पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा आइडियली? मिड पॉइंट के फॉर्मूला, ओके, हम इसको दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे मिड पॉइंट के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी व्हाट इज इट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से क्या होगा? वी विल से दैट 2 विल बी इक्वल टू x plus 1 का हाफ एंड -3 विल बी इक्वल टू y plus 4 का हाफ। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब करेक्ट, विच मीन्स दैट ये इक्वेशन बनेगी 2 2s are 4 is equals to x plus 1, मतलब x is equals to 4 minus 1 3। यहां देखा जाए तो -6 y plus 4, तो y is equals to होगा -10। 3, -10 is basically what my number is. Okay, before we proceed on to the questions of the chapter, let's understand something. अभी तक हमने पढ़े coordinates, ठीक है? Coordinates में जो हमने points mark किए x, y are called as ordered pairs. Why are they called as ordered pairs? Because every coordinate will always have a x and always have a y, which will have a designated integer number, be it positive or be it negative, which is why it's always called as a ordered pair. Okay, and coordinate geometry will always act as a bridge between your algebra and geometry. So basically the last question that we were trying to solve, उसमें हम algebra का ही वो एक पार्ट था जो थोड़ा सा extend होगा। उसका एक सॉल्व एग्जाम्पल में एक डिफरेंट वीडियो बना करके आपको डाल दूंगी, यू विल बी एबल टू सी दैट। लेट्स मूव ऑन टू वन क्वेश्चन दैट वी विल टेक। सो द क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0। सेम है, the center of a circle is at 2,0, tick, and a is 6,0 and b is x, y, right? Midpoint formula again आप कैसे निकालोगे? आपको बोला गया कि ये रेडियस है, so this distance is equals to this distance, correct? This distance is equals to this distance, और अगर आप इसमें midpoint formula लगाते हो तो what will it be? It will be equal to 2 is equals to 6 plus x divided by 2, which means 6 plus x is equals to 4, which means x is equals to -2. Then अगर मैं इसको बोलूँ 0 is equals to 0 plus y divided by 2, which means that becomes y is equals to 0. That means ये पॉइंट कहीं आपका x एक्सिस पे ड्रॉप कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है -2,0। ये पॉइंट जहां कहीं भी ड्रॉप कर रहा होगा, y एक्सिस अगर आपकी 0 है तो ये x एक्सिस पे ही ड्रॉप करेगा। मतलब ये पॉइंट कहां पर होगा पता है? -2 -1, ये पॉइंट होगा यहाँ पर।
Cool. Okay. So this video will end here. इस वीडियो से our takeaways are that we've understood what is coordinate geometry, we've understood how do we calculate. The next this basically covers the entire portion of your chapter. The next video that will drop will be the continuation of this chapter in the form of solved examples. Stay tuned to Kalpavruksha Learning. Thank you for joining.